नेक्स्ट टॉपिक है हाई टाइड एंड लो टाइड. Tides are rise and fall of the sea levels caused by the combined effect of the gravitational forces extended by moon and the sun and the rotation of the earth. The rotation of the earth creates two forces, the centripetal and the centrifugal, which plays a major role in the formation of the tides. This means that the sides of the earth that faces the moon experiences a gravitational forces greater than that of the earth itself. Hence, we experience high tides. On the other hand, side, the earth that is facing away from the moon experiences the less gravitational force from the moon. As a result, we experience high tide, indirect high tides. Okay, between these two high tides and water level goes down, this is called the low tides, yeah, eve. Okay, thus in the time span of the 24 hours and 50 minutes or 52 minutes, we have experienced two high tides and two low tides. Okay, बेसिक बात समझ लो. जैसे क्या है, ये आपके अर्थ है, ये मून है और ये सन है. ठीक है, अगर ये तीनों एक डायरेक्शन में है, ठीक है, तो ये जनरली हाई टाइड रहेगा. क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा ज़्यादा तो रहेगा ही अर्थ के पास में. ओके, और यही अगर मून 90 डिग्री बना लेगा सन और अर्थ के साथ में, अर्थ बीच में, मून 90 डिग्री में, तो यहाँ पे लो टाइड आएगा. क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का अब असर उतना ज़्यादा, अगर लाइन में होता तो ज़्यादा होता है और नहीं तो कम रहेगा. बाकी न्यू मून कब होगा? जब मून सन और अर्थ के बीच में होगा तो न्यू मून, और जब मून अपोजिट साइड रहेगा तो फुल मून होगा. ओके, तो जनरली जब मून सन और अर्थ के बीच में होगा तो वहाँ पे न्यू मून होता है. व्हेन द सन, मून एंड द अर्थ अलाइन इन ए स्ट्रेट लाइन, वी एक्सपीरियंस ए स्प्रिंग टाइड. ओके, इसी को स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, सिगिगी पोजीशन. इन द एस्ट्रोनॉमी दिस सिचुएशन इज कॉल्ड द सिजिगी. ठीक है, सिजिगी या सिगिगी, जो भी आप प्रोनाउंसिएट करो. इट अकर्स ऑन ए फुल मून or a new moon day. On the other hand, when the sun, moon and the earth are at the right angle to each other, the gravitational forces of these celestial body act against each other, resulting in the neap tide. ये neap tide है. Okay, the neap tide is observed on the 7th 8th day of the each lunar month, approximately 14 days. During the neap tides, there is a decrease of 20% in the spring tides, whereas the neap tides are higher than the normal occurrences. The moon is coolest celestial body on the earth, hence its gravity has a significant impact on our planet. The moon is responsible for the sea waves of the oceans. The effect of the moon on the tidal forces of our planet is 2.17 times greater than that of the sun. The city of the Southampton in the England experiences 4 tides every day. This occurs because 2 tides travel from English Channel and 2 from the North Sea at the different level intervals. तो ये याद रखिएगा, साउथहैम्पटन ऑफ इंग्लैंड एक्सपीरियंस 4 टाइड्स इन अ डे. ओके, देन इसी में थोड़ा सा आगे देखते हैं. ओशियन ट्रेंचेस. ओके, ओशियन ट्रेंचेस आर लॉन्ग नैरो ट्रेंचेस दैट plunge to great depth up to great depth of the 5,000 fathoms or 30,000 feet. Trenches account for approximately 7% of the ocean's relief, contrary to our expectation. Most of the deepest trenches are not located in the midst of the ocean. They are more often found close to the continents, particularly in the Pacific Ocean, where several deep trenches have been found. Then Mariana Trench की बात करें, is the deepest trench in the world. It is located in the Pacific Ocean, east of the Mariana Island. The Mariana Trench is crescent-shaped trough. This trench was discovered in 1875 with the help of the survey ship called HMS Challenger. Okay, HMS Challenger का नाम याद रखिएगा. The Mariana Trench was also surveyed in the 1951 by British survey vessel HMS Challenger II. The estimated depth of the Challenger deep in the Mariana Trench is 11,033 meters, मतलब लगभग 11 किलोमीटर. ओके, द प्रोमिनेंट ट्रेंचेस ऑफ द नॉर्थ पैसिफिक ओशियन आर मैरियाना ट्रेंच, कुरिल ट्रेंच, अलूसियन ट्रेंच एंड जापान ट्रेंच. एक बेसिक बात समझ लो कि ये 11 किलोमीटर के आसपास है गहरी. ठीक है, बट अगर अपना हिमालय जो सबसे हाइट जिसकी ज़्यादा है उसकी बात की जाए तो 8848. ठीक है, तो लगभग लगभग 9 किलोमीटर, पौने 9 किलोमीटर, 9 से थोड़ा सा कम है, बट उससे भी ज़्यादा गहरी है 2 किलोमीटर. तो ये इसीलिए मैरियाना ट्रेंच सबसे ज़्यादा गहरी है अभी तक का. द प्रोमिनेंट ट्रेंचेस ऑफ द अटलांटिक ओशियन आर प्यूर्तो रिको ट्रेंच, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, रोमांची ट्रेंच,
इक्वेटोरियल Atlantic Ocean, then South Sandwich Trench, South Atlantic Ocean, then the Sunda Trench, old name Java Trench, is deepest trench in the Indian Ocean. Diamantina Trench is in the Indian Ocean. It is located about 1125 kilometers southwest of the Perth Basin. It is also known as the Diamantina Fracture Zone. ठीक है, देन क्वेश्चन देखते हैं. What are the causes of high tide and low tide formation in the Indian Ocean? क्या रीजन है? ड्यू टू द ग्रेविटेशन, सेंट्रीपिटल फोर्सेस एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस. ये ऑप्शन सही है. देन टाइड्स अकर इन द ओशियन एंड सी ड्यू टू विच अमॉन्ग द फॉलोइंग. किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्सेस फ्रॉम द सन, राइट. ग्रेविटेशनल फोर्सेस फ्रॉम द मून, सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ऑफ द अर्थ. तीनों सही है. ओके, तो 1 2 3 ऑप्शन 2015 का आईएएस का क्वेश्चन है. द कॉज ऑफ द प्रोड्यूसिंग इनडायरेक्ट हाई टाइड इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस ऑफ द अर्थ. देन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द नीप टाइड एंड हाई टाइड्स इज बिलो नॉर्मल एंड लो टाइड इज एबो नॉर्मल. पहला है. ओके, एकदम करेक्ट है. ड्यूरिंग नीप टाइड्स अकर्स ड्यूरिंग द न्यू मून साइड इंस्टीड ऑफ द फुल. नहीं, ये बिल्कुल गलत है. ठीक है, ये तो नीप की पोजीशन, ये तो सिगी वाली पोजीशन होती है. ओके, तो दूसरा गलत है, पहला सही है. तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है. वही चीज़ इन्होंने एक्सप्लेन किया. नीप टाइड अपोजिट टू स्प्रिंग टाइड डज नॉट अकर एट न्यू मून और फुल मून बट 7th 8th डे ऑफ द दीज टू एक्सट्रीम्स. ओके, देन अगला क्वेश्चन. इन विच आर द फॉलोइंग पोजीशन गिवन इन द फिगर सी टाइड वुड हैव मैक्सिमम हाइट. ओके, देखो मैक्सिमम हाइट कब होगी? जब तीनों एक लाइन में हो. ओके, तो M4 पोजीशन जो है ये तीनों एक लाइन में है. यहाँ ये भी होगी, लेकिन ये थोड़ा सा इस वाले से कम है क्योंकि तीनों एक डायरेक्शन में और एक साथ ही हैं. ओके, ये थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन डिस्टेंस बढ़ गई. ओके, तो M4 पोजीशन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये. स्प्रिंग टाइड अकर्स व्हेन सन एंड अर्थ एंड मून्स आर इन स्ट्रेट लाइन. ओके, द हाई टाइड इन ओशियन इज कॉज्ड बाई किसके? मून के थ्रू. ओके, देन अगला क्वेश्चन. मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड. ओके, देखो इसमें दो लिस्ट है, इन दोनों को मैच करना है. देखो ओशियन ट्रेंचेस और लोकेशन है, कौन सी ट्रेंच किस लोकेशन पे है वो आपको मैच करना है. ओके, सो उससे पहले कोई भी देख सकते हैं. देखो यहाँ पे अलूसियन है. अलूसियन हमने कहाँ पढ़ा था? नॉर्थ पैसिफिक में. ओके, देन कर्माडेक हमने कहाँ पढ़ा था? साउथ पैसिफिक. देन सुंडा कहाँ पढ़ा था? इंडियन ओशियन. सैंडविच कहाँ पढ़ा था? सैंडविच हमने पढ़ा था साउथ अटलांटिक ओशियन. तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट है. वही चीज़ यहाँ बताया इन्होंने. बाकी सभी के नाम दिए कि किस कहाँ पे कौन कौन सी ट्रेंच पाई जाती है. ओके, देन विच इज़ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच. कौन सी? मैरियाना ट्रेंच है. कहाँ पे? नहीं, इसमें मैरियाना डीपेस्ट ट्रेंच. देखो मैरियाना नहीं है, तो इसलिए चैलेंजर है. चैलेंजर ट्रेंच इज लोकेटेड इन द पैसिफिक ईस्ट ऑफ द मैरियाना आइलैंड इन द शेप ऑफ द क्रिसेंट. अच्छा, एक्चुअली चैलेंजर ट्रेंच भी इसको बोलते हैं, मैरियाना को ही, इसलिए क्योंकि चैलेंजर HMS चैलेंजर ने इसको सर्च किया था. इट हैज़ द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ ओशियन नोन एज द चैलेंजर डीप इन द मैरियाना ट्रेंच नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश एक्सप्लोरेशन वेसल HMS चैलेंजर, इसलिए इसको चैलेंजर बोलते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डीपेस्ट ओशियन ट्रेंच. कौन सी? मैरियाना. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियंस डायमेंटीना ट्रेंच इज सिचुएटेड. कहाँ पे? इंडियन ओशियन. देन अगला है. दो लिस्टें, इनको मैच करना आपस में. ओशियन है और ये डीपेस्ट पॉइंट है. ओके, तो इस देखते हैं. इसमें देखो पैसिफिक ओशियन, इसमें क्या है? पैसिफिक ओशियन में आपका मैरियाना ट्रेंच है. उसके बाद अटलांटिक ओशियन में क्या है? प्यूर्तो रिको ट्रेंच. देन इंडियन ओशियन में क्या है? जावा ट्रेंच. आर्कटिक में यूरेशियन बेसिन. ओके, देखो आर्कटिक यूरेशियन साइड, यूरोप साइड यूरेशियन हो गया. पैसिफिक का आपको मैरियाना पता ही है. अटलांटिक का आपको प्यूर्तो रिको पता ही है. इंडियन ओशियन में जावा आ गया. सिंपल है. तो यहाँ से आपके बी ऑप्शन करेक्ट होता है. सुंडा ट्रेंच लाइज पैरेलल टू द आइलैंड. कहाँ पे? देखो एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे पैरेलल क्या कुछ डिस्टेंस है. सुंडा ट्रेंच इज ए डीप सबमरीन डिप्रेशन इन द ईस्टर्न इंडियन ओशियन दैट एक्सटेंड सम 2000 miles in a northwest southeast arc along the southwestern and southern Indonesian archipelago. It is located about 190 miles off the southwestern coast of the island of the Sumatra and Java, stretching eastward south of the western lesser Sunda island. Okay, then दो लिस्ट हैं, इसमें मैच करना है आपको. इनमें अगेन देखो पैसिफिक आर्कटिक एकदम बेसिक, वही बार बार क्वेश्चन आता है. ओके, इसमें
अगेन ये ABCD क्यों दिए हैं, ठीक है देखते हैं। देखो पैसिफिक, पैसिफिक में क्या है, मैरियाना है, लगा दो। देन आर्कटिक, आर्कटिक में मोलोए डीप है, इंडियन में सुंडा, लगा दो। अटलांटिक में पुर्तो रिको, देखो अटलांटिक पुर्तो रिको याद रखना। और पैसिफिक मैरियाना ये लगभग हर साल आता है। बाकी एक इंडियन का रहेगा जो कि आपको पता होगा, दूसरा जो बचेगा वो उसका आर्कटिक का हो जाएगा। तो यहाँ से बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके।